Hello everyone, welcome back to your accountancy videos. As we were doing chapter 9 ledger, we will proceed towards question number 6 from this video. We have done the earlier questions and I asked you to practice all the illustrations as well. I hope you have done all those questions, because if you will prepare ledger, so it's implied that journal has been done by you. So look at question number 6 in your book. Now we will look at question number 6 in your book. Following balances already exist in the book of Ashok Delhi on 1st April 2020. Assets and liabilities are there. You already know that assets is equal capital plus liabilities. All the assets always have a debit balance. इसको हम debit side पे लिखेंगे. And liabilities on the credit side. Assets minus liability will be your balancing figure. That amount will be shown as capital. Following transactions took place on 1st April 2020. On 4th April sold goods for cash. Cash पे हम goods को sale कर रहे हैं. Obviously cash increase हो रहा है. Increase in cash will be debited, as increase in asset is debited always. Cash account debit to sales account. 6th April goods returned by Ram. Ram returned goods of worth rupees 1000. Goods returned by Ram means this is sales return. Sales return account is debited always to Ram 1000. 10th April purchase goods from Rajesh of list price 10,000 for rupees 9,000. 10,000 की वर्थ की चीज हम 9,000 रुपीज में परचेज कर रहे हैं फ्रॉम राजेश. कैश या चेक का नाम नहीं गिवन. इट मीन्स इट इज इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम नेम ऑफ द पार्टी लिखेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश. डायरेक्टली द अमाउंट दैट इज 9,000. After that, April 15 says bought goods of list price 15,000 from Rakesh, less 10% trade discount and 5% cash discount. Paid 40% of the amount immediately. Whenever we purchase goods from a party, the name is here Rajesh. Amount of 40% is paid immediately. So for cash discount, that अमाउंट ऑफ 40% विल बी एप्लीकेबल. पूरे अमाउंट के ऊपर हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे. उससे पहले हमें लिस्ट प्राइस गिवन है, उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके दो पार्ट करेंगे, एक 40% एक 60%. जो 40% है उसके ऊपर तो हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और बाकी का 60% एज इट इज लिखेंगे, एज्यूमिंग इट इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. On 20th April, paid to Rajesh in settlement of his account 38,600. सबसे पहले हमें राजेश का नाम देखना है. 30,000 का ऑलरेडी क्रेडिटर्स में राजेश का नाम था. फिर हमने 9,000 रुपीज के उससे फर्दर और परचेज कर लेते थे. टोटल हो गया 39,000, जिसमें से 38,600 हम उसको पे कर रहे हैं इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. जब 39,000 के लिए 38,600 अमाउंट पे करके फाइनली अकाउंट को सेटल किया जा रहा है, इसका मतलब बाकी का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड. 400 विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड हियर. 25 अप्रैल पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस दैट इज पर्सनल एक्सपेंस. कभी भी प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस पे करें, दैट इज ड्रॉइंग. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रिसीव्ड कमीशन 2,000, अगेन cash account debit to commission account. Pass these entries into journal and then post them into ledger and finally prepare a trial balance. Trial balance is chapter number 13. I'll do this chapter after completion of chapter 9, but for the time being you need not prepare trial balance. You'll just pass those entries in journal and then post them into ledger. फर्स्ट हमने फॉर्मेशन की एंट्री की. असेट सारे लिख दिए डेबिट साइड पे एंड लायबिलिटी राजेश जो थी वो लिख दी क्रेडिट साइड पे. असेट्स माइनस लायबिलिटी विल बी कैपिटल एंड ऑन द अदर हैंड डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल ऑलवेज. डेबिट का टोटल हमने किया आ रहा है 1,90,000. इफ आई डिडक्ट 30,000 फ्रॉम दैट हमारे पास कैपिटल बच जाएगी 60,000. देन कैश सेल्स इज मेड. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Sales return was there from Ram. Sales return debit to Ram 1,000. Purchase of 9,000 वर्थ हमने डायरेक्टली, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते, डायरेक्टली 9,000 का अमाउंट दिखाया. उसके बाद जो एंट्री है
15,000 के गुड्स थे। सबसे पहले हमें 15,000 में से 10% डिडक्ट करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फाइनली अमाउंट आ गया 13,500। अब 13,000 का 40% हम निकालेंगे, आया 5,400। यही अमाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल है फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज देयर। हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, बीइंग इट एन इनकम। हमने 5,400 का 5% निकाला, आ गया 270। 5,400 में से 270 डिडक्ट किया, 5,130 इज द एक्चुअल कैश पेमेंट। रेस्ट 60% वॉज अज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट। उसके लिए हमने लिख दिया राकेश का नाम 8,100। आफ्टर दैट ऑन 20th April an amount of rupees 38,600 was paid in full settlement। हमने राजेश के जो भी अमाउंट थे उनको एडअप किया। कंपैरिजन करने पे 400 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, बिकॉज क्रेडिटर्स को हम कम पेमेंट करते हैं, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट इज एन इनकम। Last two transactions is life insurance premium, personal expense paid, drawing account debit to cash account and cash account debit to commission account। 30th April। दिस वॉज अबाउट जर्नल। इसके बाद हमें इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर में। प्रीवियस वीडियो में भी लेजर की हमने पोस्टिंग की थी। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सीक्वेंस वाइज अपनी ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन हर एस्पेक्ट को डेबिट और क्रेडिट साइड पे, एक अकाउंट का डेबिट होगा तो दूसरे का क्रेडिट होगा, उस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। या फिर सभी आप अकाउंट्स की हेडिंग के हिसाब से उतने लेजर्स प्रिपेयर कर लोगे, कीपिंग द साइज ऑफ द अकाउंट इन माइंड। हम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इनको जनरली बड़ा बनाते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बड़े बनते हैं। कैपिटल अकाउंट पे जनरली फ्लक्चुएशंस नहीं होती, वो छोटा बनाते हैं और उनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में से आइडेंटिफाई करके वहां पे पोस्ट करते जाते हैं। फर्स्ट मैंने कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट में हमारे पास बिगिनिंग में ऑलरेडी बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमने इसको लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब पिछले साल का हम बैलेंस लेकर आ रहे हैं 1st April को 50,000। 4th April सेल्स वॉज मेड फॉर कैश एंड ऑन 30th April कमीशन वॉज रिसीव्ड। ये सारी चीजें कैश को डेबिट कर रही थी, हमने डेबिट साइड पे लिख दी। जब भी कैश की पेमेंट होगी या कैश विड्रॉ किया जाएगा, वो सारी चीजें क्रेडिट साइड पे आएंगी। 15th April को ट्रांजेक्शन थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने वो लिख दी। आफ्टर दैट 20th April को बाय राजेश अकाउंट 38,600 एंड कैश अकाउंट में इतनी ही पेमेंट गई थी और ड्राइंग हमने की थी 20th April को 500 की। अब बैलेंसेस कैसे करेंगे अकाउंट को? हमेशा अकाउंट के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। डेबिट साइड का टोटल क्या 59,000 आ रहा था। क्रेडिट साइड के अमाउंट्स हमने देखे कम थे, उनको माइनस किया, बैलेंस बच रहा है। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करके 14,770। इफ आई प्लेस दिस अमाउंट हियर, बोथ साइड्स विल बी इक्वल। दोनों साइड्स का इक्वल आ गया 59,000। डबल लाइन्स मीन्स अकाउंट इज क्लोज्ड। एक साल का कैरेट डाउन फिगर, अगले साल का ब्रॉड डाउन फिगर, एक महीने का। यहाँ 30th April को आपका मंथ एंड हो रहा है, तो 1st May को जब हम लिखें, 1st May को वही कैरेट डाउन हमारा ब्रॉड डाउन फिगर आ जाएगा। बैलेंस अपोजिट साइड पे लिखते हैं। जब यहाँ कैरेट डाउन बच रहा है तो उसको नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे, इस साइड पे आएगा ब्रॉड डाउन का बैलेंस ऑन 1st May। आई एम नॉट राइटिंग द बैलेंस इन एवरी अकाउंट, बट इट इज अंडरस्टूड कि हाउ आप बैलेंसेस को अकाउंट कैसे करें। आफ्टर दिस स्टॉक अकाउंट बिगिनिंग में ही ऑलरेडी था, हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए, स्टॉक वॉज नॉट ट्रांसफर्ड एनीवेयर, तो यही हमारा ब्रॉड डाउन फिगर ही कैरेट डाउन फिगर बनेगा 30th April का। और इसको अगर हम फर्दर फॉरवर्ड करना चाहें तो इसकी एंट्री भी सेम ऐसी बनेगी कि हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की डेट डाल देंगे 1st May और लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगेन द सेम अमाउंट। देयर इज नो मोर फास्ट रूल दैट amount will fluctuate. It can be same from one month to another. Then Ram's account was prepared. I have written only Ram. If you need to write account, so we'll write Ram's account. Debit side, credit side. Credit side पे हमने देखा सेल्स रिटर्न हुई थी 1,000 की। ओपनिंग बैलेंसेस हमने बिगिनिंग में ही देखे थे राम के 1st April को 50,000। इफ रिटर्न वॉज देयर 1,000,
क्लोज किया हमने, क्लोज करते टाइम कैरेट डाउन वर्ड यूज होता है और मंथ की एंड डेट आती है 30th अप्रैल। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 माइनस 1,000 49,000। सेम अगेन इसको ब्रॉड करेंगे तो फर्स्ट मे की डेट आ जाएगी, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन बन जाएगा फर्स्ट मे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 49,000. You need not write it in every account. You just need to learn this fact. Sales is made for cash 4th April by cash account. क्लोज किया, इस साइड भी सेम अमाउंट आना चाहिए। यहाँ पे वर्ड आ जाएगा कैरेट डाउन, क्योंकि हम अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं 7,000 फर्स्ट मे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,000. Machinery account balance was there in the beginning to balance brought down 60,000. Same close किया 60,000. Capital account beginning में हम हमेशा beginning capital को balance brought down के नाम से credit side पे शो करते हैं, क्योंकि capital एक liability है. Close किया account. राजेश was your another liability. उसके opening balances हमने दिखाने हैं, closing balances दिखाने हैं. ओपनिंग बैलेंसेस हम लेकर आए थे 1 अप्रैल को राजेश के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. ड्यूरिंग द ईयर हमने और परचेज की राजेश से 9,000 की. फाइनल सेटलमेंट वाज मेड ऑफ 38,600 और बाकी का हमारा था डिस्काउंट रिसीव्ड. दोनों साइड्स का टोटल किया 39,000 आ रहा है, मतलब कुछ भी अकाउंट में बैलेंस नहीं बच रहा. परचेज अकाउंट अकॉर्डिंग टू डेट, जहां जहां पे भी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है इस साइड पे लिखते जाएंगे. क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, टोटल किया कैरेट डाउन. ड्राइंग वाज मेड ऑन 25th अप्रैल. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री थी, तो ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट और अकाउंट को क्लोज करते टाइम मंथ की एंड डेट डाली बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अकाउंट क्लोज डबल लाइन्स. आफ्टर दिस राकेश से हमने परचेज किया था. परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, जो 60% अमाउंट था वही हमने राकेश के अमाउंट में डाला था, बिकॉज इट वाज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. 8100 बोथ साइड्स इक्वल. डिस्काउंट रिसीव्ड डेट देखिए हमने 15 अप्रैल और 20th अप्रैल दोनों को है. टोटल किया, यही बन गया बैलेंस कैरेट डाउन. अगर हम इसको 1 मई में लेकर जाएं, यही बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. एक साल का, एक महीने का कैरेट डाउन फिगर, नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड डाउन फिगर. क्लोज करते टाइम वर्ड यूज होगा कैरेट डाउन, नेक्स्ट टाइम जब लेके जाएंगे वर्ड यूज होगा ब्रॉड डाउन. कमीशन अकाउंट वाज देयर 30th अप्रैल 2000 क्लोज्ड. सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न वाज देयर ऑन 6th अप्रैल. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम की एंट्री थी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड पे चला गया और राम की क्रेडिट साइड पे चला गया. हमेशा अकाउंट्स की क्रॉस एंट्री होती है. जैसे यहाँ पे भी देखा आपने, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा था कमीशन अकाउंट, और कमीशन अकाउंट की हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं बाय कैश अकाउंट. बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 देन. After this question number 8 says that business was started on 1st April 2020 with the following assets and liabilities. हमने जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सारे के सारे असेट्स को डेबिट साइड पे लिख दिया और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लिख दिया. जवाहर एंड विकास आर क्रेडिटर्स, तो हम उनको उनके नाम के साथ लिख रहे हैं. सेम वेज हरिहरन, राजहंस, दयादी डेटर्स, तो हमने उनको डेबिट साइड पे डेटर्स ना लिख के उनके इंडिविजुअल नाम से लिखा, क्योंकि इनके बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. अगेन डेबिट एंड क्रेडिट्स आर टोटल टू बी इक्वल ऑलवेज, तो हमने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड के सारे बैलेंसेस को डिडक्ट कर दिया और बैलेंस आ गया कैपिटल. Next transaction on 1st April, paid rent by check rupees 5,000. Obviously rent expenses are debited always. रेंट को हमने डेबिट साइड पे लिखना है, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है तो क्रेडिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट. After this, on April 2nd, goods purchased on credit from Prabhat, Rajan and Pasi, Delhi. हम उनसे परचेज कर रहे हैं. नेम ऑफ द पार्टी गिवन है, मीन्स ये क्रेडिटर्स हैं, तो हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात, टू राजन, टू पासी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. On 3rd April, goods sold on credit to Rakesh, Gurugram and Devendra, Delhi, 17 and 25,000. After this, paid telephone expense payable by check.
हमें सेल के बारे में बताया हुआ है, सेल इज मेड ऑन क्रेडिट, तो हमने नेम ऑफ द पार्टी लिखा 3 अप्रैल को, राकेश डेबिट, देवेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आफ्टर दिस टेलीफोन एक्सपेंसेस पेएबल का हमें अमाउंट नहीं बताया कि दीज एक्सपेंसेस वर पेड ड्यू इन द बिगिनिंग। तो हमने अपनी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री थी उसमें जाके ट्रेड एक्सपेंस पेएबल का अमाउंट देखा, वो था 4000, तो हम उसी की पेमेंट कर रहे हैं। हमने सेम डेट डाली 3 अप्रैल को, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड बाय चेक, क्योंकि चेक से पेमेंट आ रही है तो हमने बैंक का नाम लिखा। आफ्टर दिस on 4th April paid the bill of petrol expenses for delivery van, 5700 के हम expenses पे कर रहे हैं, तो हमने उसका नाम दे दिया delivery van expenses account debit to cash account being petrol expenses paid 4th April को। 5th April की ट्रांजेक्शन है कैश ड्रॉइंग बाय राजेश, राजेश इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज ही हैज विड्रॉन कैश। आफ्टर दैट सैलरीज पेड ड्यू इन द बिगिनिंग, 7th अप्रैल को अगेन हमें सैलरी पेड ड्यू इन द बिगिनिंग के बारे में बोला है। बिगिनिंग में हमने देखा 7000 का अमाउंट था, वही अब पे करें तो सैलरी पेबल अकाउंट लिख सकते हो या सीधा सैलरी अकाउंट लिख सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है, टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। After 7th April or 9th April, cash sales was made, so cash account debit to sales account. जब भी सेल करेंगे कैश आएगा, increase in asset is debited always, so cash account debit to sales account. 9th April के बाद है हमारा 11th April, goods returned by राकेश एंड देवेंद्र, हमने उनको सेल किया था, सेल किए हुए गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है बट सेल्स रिटर्न उसकी अपोजिट यानी कि डेबिट साइड पे आता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश टू देवेंद्र बीइंग गुड्स रिटर्न बाय देम 5000 एंड 1000, टोटल करके हमने लिख दिया 6000। इसके बाद 12th अप्रैल को हमें चेक रिसीव हो रहा है फ्रॉम हरिहरन एंड राजहंस 20,000 एंड 40,000। जब भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो चेक रिसीव्ड, हम फर्दर अपनी जर्नल एंट्रीज रीड करके देख लेते हैं कि कहीं कोई ऐसी डेट तो नहीं है जब उनके डिपॉजिट के बारे में बताया हुआ, मींस चेक रिसीव और डिपॉजिट अलग अलग डेट पे हो रहा। हमने चेक किया कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं थी, मतलब जिस डेट पे आप चेक रिसीव कर रहे हो उसी डेट पे बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हो और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन टू राजहंस। आफ्टर दिस ऑन 16th अप्रैल गुड्स रिटर्न टू प्रभात एंड राजन, हमने उनसे परचेज किए थे, अब हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। परचेज अकाउंट वर डेबिटेड और परचेज रिटर्न क्या होगा उसका अपोजिट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू देम प्रभात डेबिट एंड राजन डेबिट। प्रभात एंड राजन हमारे क्रेडिटर्स थे, जब हम परचेज किए हुए गुड्स उनको रिटर्न कर देंगे तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड ऑलवेज। आफ्टर दिस ऑन 20th अप्रैल चेक्स इशूड टू क्रेडिटर जवाहर एंड विकास, हम किसी पार्टी को अगर चेक इशू करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, हमने बैंक बैलेंस को कम किया। डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड ऑलवेज, द चेक्स वर इशूड टू जवाहर एंड विकास 50,000 एंड 10,000, टोटल 60,000 का हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, बीइंग चेक्स इशूड टू देम। After this, on 22nd April, received check from हरिहरन, राजहंस, देवेश एंड राकेश। हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, साथ साथ बुक में से क्वेश्चन रीड करेंगे कि 4 चेक्स हमने रिसीव किए, उसमें से हमें बताया चेक्स रिसीव फ्रॉम राकेश एंड देवेंद्र आर डेटेड 25th May 2020। हम 22nd अप्रैल की बात कर रहे हैं, बट जो हम दो पार्टीज राकेश एंड देवेंद्र की चेक रिसीव कर रहे हैं वो तो 25th May से रिलेटेड है, यानी कि एट प्रेजेंट हम उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो उन दोनों चेक्स के लिए हमने वर्ड यूज करना है चेक इन हैंड, और बाकी के लिए हम बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। आउट ऑफ दोज 4 हमने 2 को अलग कर दिया जो अभी हम डिपॉजिट नहीं कर रहे, बाकी यानी कि डिपॉजिट कर रहे हैं 22nd अप्रैल को हरिहरन एंड राजहंस का, तो इन दोनों का बैलेंस हमने 10,000 से इंक्रीज कर दिया बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू हरिहरन टू राजहंस बीइंग चेक्स रिसीव्ड बाय देम एंड वी अज्यूम दे वर डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, दैट इज व्हाई बैंक बैलेंस इज बीइंग इंक्रीज्ड। और बाकी के जो 2 चेक थे उसके लिए हमने चेक इन हैंड की एंट्री की है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश टू देवेंद्र 10,000 एंड 5,000।
अब बात आती है 24 अप्रैल को हमने जो चेक रिसीव किए थे राकेश और देवेंद्र के, दे वर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक पेइंग इंटरेस्ट एट 10%। अगर हम कभी भी किसी चेक को जो बाद की डेट का है ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं तो हमें बैंक को कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं डिस्काउंट करवाने के लिए। उस चार्जेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। यहाँ पे रेट भी गिवन है 10%। टोटल हमारे चेक्स का अमाउंट था 15,000। 15,000 पे 10% के हिसाब से हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे वर्ड क्या गिवन है, पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। हम कितने दिन पहले कर रहे हैं, हम 24 अप्रैल को उसको डिस्काउंट करवा रहे हैं, जबकि डेट थी 25 मई, यानी कि हम कुछ डेज पहले उसको डिस्काउंट करवा रहे हैं। हम उन डेज को डिवाइड करेंगे 365 से। तो यहाँ पे भी यही किया हमने। 15,000 10% 21/365। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 86 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, 15,000 में से इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, बाकी का चला जाएगा बैंक में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट में 25 अप्रैल को ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम देवेंद्र इन फुल सेटलमेंट 18,500। हम 18,500 देवेंद्र से रिसीव करें इन फुल सेटलमेंट। अब इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको देवेंद्र के अकाउंट को देखना है कि हमें एक्चुअल में देवेंद्र से कितना पैसा लेना था। हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स देखी। एक बार हमने देवेंद्र को सेल किया था क्रेडिट पे 25,000 का अमाउंट, फिर उसमें से 1,000 का जो देवेंद्र को सेल की थी हमने 25,000 की, 1,000 का एक बार डिडक्ट हुआ सेल्स रिटर्न, 5,000 का दूसरी बार डिडक्ट हुआ सेल्स रिटर्न। और आप देखोगे ये 22 अप्रैल को आपने जो चेक इन हैंड था उसकी एंट्री की थी 5,000 की। तो हमने अपने 25,000 के टोटल अमाउंट में से 1,000 का रिटर्न डिडक्ट करना है और 5,000 का जो चेक आ चुका था वो रिटर्न डिडक्ट करना है। हमने टोटल माइनस किया, मेरे पास बन रहा है 19,000 का अमाउंट। क्वेश्चन में बताया है 18,500 का अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो इन फुल सेटलमेंट। अगर 19,000 के लिए आप 18,500 ही एक्सेप्ट करते हो, बाकी का क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो हमने डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस होता है उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो हमने लिख दिया 25 अप्रैल को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 और हमारी टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स इक्वल हो गई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई हैव नॉट explained the ledger portion because I want all of you to solve that. In my next video I'll solve the ledger. तब तक अब आप सभी लोग अपने खुद से एक बार लेजर जो है सारे के सारे बना लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में व्हेन आई एक्सप्लेन आपका कंफर्म हो जाए और साथ साथ आपको अपनी गलती भी पता चल जाए वेयर यू आर रॉन्ग। तो आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेजर पोर्शन आप खुद करोगे, मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी, बट दोज हु वांट टू स्टडी रियली, आपको पहले ही बताया कि आपको इस टाइम पे अपना बेस बनाना है जो 12th में आपको हेल्पफुल होगा। तो आप खुद से अपना एक जो लेजर प्रिपेयर कर लोगे। लेजर में बस हम पोस्टिंग करते हैं, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लेजर बनने वाले हैं, तो आप सभी के नाम भी एक बार चेक कर लोगे कि कौन कौन से लेजर हैं, आपने सारे लेजर्स कंप्लीट किए हैं नहीं, क्योंकि हर एक लेजर के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं व्हेन आई अलॉट मार्क्स टू यू। So thank you so much. I hope this question is clear. You can ask doubts from me in any of the Zoom class. Thank you so much.